Hi guys and girls, so this is going to be in continuation of the last video. So this will be part 2 of chapter 1 Indian Polity, M. Laxmikanth's 6th edition, and the chapter 1 is about historical background where we are covering different acts which were passed in British Parliament. Okay, so this part 2 is about the Crown Rule 1858 to 1947. In part 1 we were covering the Company Rule which was from 1773 to 1858. If you have not watched it, please go to watch that video first and then come to this part 2 of the video. Okay, so let's start. So first thing first, we need to understand that why are we telling about the Crown Rule? I mean, why it is about from 1858 to 1947 and why is it the Crown Rule? So basically, when we talk about the Company Rule, so it everything the administration was being covered by East India Company. But after the revolt of 1857, which is actually considered as the first revolt of Indian independence, or the Sepoy Mutiny also, that feeling of the superiority of British was kind of abolished. मतलब एक तरीके से बहुत तरीके prestige पे आ गई थी बात. And then British Crown realized that we cannot work in this way, we cannot function in this way, and to assure the Indians that the rule of British was for the good of Indians, they finally took the administration directly under British Crown, and that is why we say that from 1858 to 1947 it is the Crown Rule, because East India Company lost its significance, its importance. So let's see. So the first act which was brought actually by British Crown was Government of India Act of 1858, and this act is told as the Act for the Good Government of India. It's known as the Act for the Good Government of India. Why? Because this was like meant to restore the faith of Indians in the British administration, that the British rule is good for the Indians. यही तो बबल बनाया था उन्होंने कि जो ब्रिटिश रूल है वो आपके लिए अच्छी है. तो ये बबल एक्चुअली ब्रेक हो गई क्योंकि फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ 1857 हुई. तो उसके बाद हाउ विल दे restore that? So उन्होंने ऐसा एक्ट लाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, जिसमें उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की कि वी आर ट्राइंग टू डू गुड फॉर यू, एंड इसीलिए इस एक्ट को एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोला गया कि हम आपके अच्छे के लिए ये एक्ट ला रहे हैं और हम अच्छे से एडमिनिस्टर करेंगे आपको. Okay, so first thing first, which we understand that since East India Company was actually you know uh, brought out of control, so whatever the bodies were related to East India Company, that was kind of abolished. So board of control and court of directors are gone. So board of control and court of directors, if you remember, this whole double government was brought by Pitt's India's Act of 1784. Okay, and first point which we need to consider here is that the whole administration is now under the majesty. So this was mentioned in the Government of India Act of 1858, and the Governor General of India, which was actually who was actually the head of the Indian administration at that point of time, the whole Indian territory, was changed to Viceroy of India. Okay, and if you remember, the Governor General of India was the post of Governor General of India was brought in Charter Act of 1833, which was actually told as the final nail in the coffin for centralization. So जो legislative powers Bombay और Madras के छीन लिए गए थे, और उसके बाद Governor General of India को supreme powers मिले थे. So this Governor General of India became now Viceroy of India, and the first Viceroy of India was Lord Canning. Okay, so this man was direct representative of the British Crown in India. Okay, तो British Crown को directly कौन represent कर रहा था इंडिया में? The Viceroy of India. Okay, and a new office was brought, that was Secretary of State for India. So now you will realize that इसके पहले यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, चलिए ठीक है किसी एडमिनिस्ट्रेशन को रख दिया, लेकिन जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया आ रहे हैं तो आप ये देखिए, फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट विच वी नीड टू emphasize here is that he was the member of British cabinet and was responsible ultimately to British parliament. तो आप समझ रहे हो, this was how British kind of showed कि अब कैसे वो लोग उन्होंने directly responsibility उठाई है, क्योंकि एक ऐसा ऑफिशियल होने वाला है, चीफ ऑफिशियल, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में आंसरेबल होगा फॉर वॉट एवर वॉज हैपनिंग इन इंडिया. ओके, विच वॉज नॉट देयर बिफोर ऑब्वियसली. ठीक है, सो दिस वॉज समथिंग न्यू विच वॉज ब्रॉट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, an official secretary of state for India who will be the member of British cabinet, जो British cabinet का member होगा and will be responsible to British parliament. Okay, and the first secretary of state for India was Lord Stanley. ओके, नॉर्मली हम फर्स्ट वाइसरॉय के बारे में पढ़ लेते हैं, लॉर्ड कैनिंग, बट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हम नहीं पढ़ते हैं, लॉर्ड स्टैनली, विच इज नॉट मेंशन इन लक्ष्मीकांत, बट आई ब्रॉट दिस फैक्ट अप हियर.
ऑल्सो एक और फैक्ट जो नहीं मेंशन्ड है एक्चुअली बुक में, बट आई वांट यू टू नो इज दैट whenever we study गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 we only study कि हाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया आया और उनको एक काउंसिल दी गई थी 15 मेंबर की, ओके, विच वाज टोल्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, ठीक है, विच वाज एन एडवाइजरी बॉडी। जैसे गवर्नर जनरल ऑफ को एक काउंसिल मिलती थी एडवाइजरी बॉडी, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी एक काउंसिल मिली एडवाइजरी बॉडी, ठीक है। नाउ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वहां पे दैट दिस काउंसिल ऑफ इंडिया वाज एक्चुअली देयर बिफोर ऑल्सो, ठीक है। जब गवर्नर जनरल का काउंसिल था तो उसको काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 आने के बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल का जो काउंसिल हुआ उसको काउंसिल ऑफ इंडिया बोला जाने लगा, और जो एग्जिस्टिंग काउंसिल ऑफ इंडिया था उसको गवर्नर जनरल काउंसिल बोला जाने लगा, ओके, मतलब काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये बोला जाने लगा। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट फैक्ट विच यू शुड नो दैट काउंसिल ऑफ इंडिया वाज देयर बिफोर 1858 बट it was the governor general's council, and now when secretary of state for india came in, then his council was known as council of india, okay. And also a very important fact is that this body was body corporate capable of suing and being sued in india and in england. So this line is very complicated, normally people don't understand that why is this line written in the last point of Laxmikanth. So I will just tell you that since East India Company was abolished, which was a corporate body, right? So there has to be a replacement of that. कोई तो replace करेगा ना उस functions को, जो functions already East India Company का court of directors perform कर रहा था. Okay, so that all those functions were being handled by now the Council of Secretary of State. So that is why this was actually going to act as a body corporate also. ठीक है, इनके एक्शंस पे इंडिया और इंग्लैंड में जो भी है एक्शंस लिए जा सकते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि दे वर केपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड। सूड मतलब जिस पर एक्शंस लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो दिस दैट इज व्हाई वी से दैट दिस वाज अ बॉडी कॉर्पोरेट। ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस बॉडी वाज नॉट परमानेंट, ये 1947 तक नहीं थी। दिस वाज एबॉलिश्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. So we will study that later also in Government of India Act 1935. For now also you should understand that Secretary of State of India Council जो थी वो आई 1858 में and it was abolished in 1935. Also one important fact was which I wanted you people to know that in like this act was brought in 1858 and the office came Secretary of State for India also in that, but no Indians were appointed for a long time in this council. In 1907 Sir Krishna Govinda Gupta and Nawab Saeed Hussain Bilgrami were appointed by Lord Morley to the Secretary of State's Council. So this you should know. Let's proceed. Next is Indian Councils Act of 1861. So see 1858 was just like एक closer था 1857 के revolt के बाद कि immediate एक action चाहिए था government की तरफ से, तो उन्होंने तुरंत ले लिया कि yes we take the responsibility now, East India Company is gone, now you can take a deep breath. This was told to Indians, but ऑब्वियसली जो फाइनल स्टेप्स थे वो डिसाइड करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए था दैट हाउ नाउ इंडिया इज गोइंग टू फंक्शन. सो अ वेरी लाइक गुड बुक बाय सर सैयद अहमद खान, he emphasized in that the main reason behind 1857 revolt was that Indians were not involved in the administration. Okay, so British government took that seriously and then they brought these Indian Councils Act. So Indian Councils Act are all about representation of Indians in the legislative councils in the administration. Okay, and there were three Indian Councils Act which were passed in 1861, 1892 and 1909. So 1909 is very popular, Morley Minto reforms. So these three Indian Councils Act were all about representation. Okay, so obviously since 1861 is the first act, the beginning of representative institutions happened here. Okay, so first thing which we need to understand that see Viceroy had a council but like जो होता ना इंडियंस थे वो उसमें नहीं थे, तो रिप्रेजेंटेशन यहाँ से शुरू होती है एंड दैट इज व्हाई नाउ द वाइसरॉयज expanded council will contain some Indians as non-official members. Okay, so नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में अभी कुछ इंडियंस भी रहेंगे इन वाइसरॉयज काउंसिल. एंड इन 1862 लॉर्ड कैनिंग हु वाज अ वाइसरॉय एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ही नॉमिनेटेड राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव. सो यू शुड रिमेंबर दीज नेम्स कि कौन सबसे पहले नॉमिनेट हुए थे इन द वाइसरॉयज काउंसिल. ओके, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव. Also,
द डिसेंट्रलाइजेशन वाज इनिशिएटेड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देखो कि आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में सेंट्रलाइजेशन रीच्ड इट्स लाइक फाइनल पीक, जहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को भी हटा दिया गया। ठीक है, तो वहां पे जो लेजिस्लेटिव पावर्स छीने गए थे लिटरली in 1833, that was restored again to Bombay and Madras presidencies। तो इनको ये कहा गया कि आपका बहुत ज्यादा राइट्स तो नहीं है बंगाल जैसे, लेकिन अपने अपने एरिया में जो आपके लेजिस्लेटिव पावर्स थे वो उनको वापस मिल गया। ओके, so decentralization was initiated in Indian Councils Act of 1861, and new legislative councils were brought for Bengal in 1862, Northwestern provinces in 1886, and in Punjab in 1897। and my mouse is not working। okay, ठीक है, तो नए नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स लाए गए इन बंगाल 1862, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस 1886, 1885 में कांग्रेस आ गई थी इफ यू रिमेंबर, एंड इन पंजाब इन 1897। तो यू मस्ट बी फीलिंग कि हम 1861 एक्ट की बात कर रहे हैं, तो व्हाई आर वी गोइंग अप टू 1897, मतलब 1897 में कुछ हुआ, व्हाई इज इट रिलेटेड टू 1861? लेकिन होता क्या है कि सम प्रोविजंस आर बीइंग मेड इन सम एक्ट, बट उसको इनैक्ट करने में कभी कभी टाइम लग जाता है। सो दैट इज व्हाई एवरीथिंग वाज प्लान्ड इन दिस एक्ट फॉर द न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, बट वो होते होते इतना टाइम लगाता है, दैट इज व्हाई जो काउंसिल्स हैं वो थोड़े लेट से आए थे, बट इन एरियाज में आ गए थे। ओके, एंड नाउ द वाइसरॉय वाज एम्पावर्ड टू मेक rules and orders for more convenient transaction of business in the council। okay, so कुछ नहीं, इट्स इज लाइक कि जो भी काउंसिल में काम होगा तो उसके लिए रूल्स एंड ऑर्डर्स वाइसरॉय बनाएंगे ज्यादा कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन के लिए। दिस इज काइंड ऑफ ऑब्वियस पॉइंट, बट स्टिल यू शुड नो। Another very important point which was brought by 1861 was portfolio system। okay, so portfolio system is like जो cabinet ministers होते हैं, बस उसको आप समझ लो, मतलब एक होता है ना, एक हेड होता है ऑफिशियल, मान लो कि home ministry है, it's being headed by someone, so that portfolio system was brought by 1861, which was actually introduced by Lord Canning in 1859। so there, like, one official would be heading one or more departments, and whatever the decisions are being taken, that is finally in the name of that फाइनल ऑफिशियल, तो वो फाइनली रिस्पॉन्सिबल होगा। तो वो पोर्टफोलियो सिस्टम हम बोलते हैं कि होता है ना, एक एक इंसान रिप्रेजेंट कर रहा है एक डिपार्टमेंट को। सो दैट वाज ब्रॉट इन 1861। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो मतलब 1861 इज फुल ऑफ इंपॉर्टेंट एक्चुअली फैक्ट्स एंड फिगर्स और फीचर्स। तो यहाँ पे ऑर्डिनेंसेस भी लाए गए। इफ यू रिमेंबर, अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनेंसेस लाने का feature है, तो that was introduced in Indian Councils Act of 1861, where the viceroy could issue ordinances in case of emergency without the concurrence of the legislative council। तो ordinance का मतलब फंक्शन ही यही है कि अगर legislative council तभी नहीं हो, ठीक है, और हमें कुछ लॉ लाना है तो हम कैसे लेकर आएंगे, तो उसी के लिए ऑर्डिनेंस होती है। तो वही चीज यहाँ पे भी लाई गई थी कि देयर इज एन इमरजेंसी एंड सम लॉ नीड्स टू बी ब्रॉट अप, देन वाइसरॉय कैन इशू ऑर्डिनेंस, एंड लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस वाज 6 months। लाइक हमारे अभी कॉन्स्टिट्यूशन में हम बाद में पढ़ेंगे कि हमारे में तो बहुत कुछ होता है कि इतने इतने दिन पे आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, फिर जब काउंसिल बैठेगी तो कितने दिन के बाद वो पास हो जानी चाहिए एंड ऑल दैट। बट यहाँ पे स्ट्रेट था कि वॉट एवर द ऑर्डिनेंस इज बीइंग पास, दैट इट द लाइफ विल बी 6 months। ठीक है, उसके बाद पास करना पड़ेगा, तब शायद वो एज अ लॉ फंक्शन करेगा। ओके, सो लेट्स मूव टू अनदर इंडियन काउंसिल्स एक्ट नाउ। So another Indian Councils Act which is in 1892, जो सेकेंड इंडियन काउंसिल्स एक्ट था। तो यहाँ पे दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं येलो बॉक्सेस बनाती हूँ, दैट इज लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ सबसे पहला जो चीज है, इफ यू think about Indian Councils Act of 1892, the first thing first which should come in your mind is election। Obviously not direct election, but इनडायरेक्ट इलेक्शन, एक लिमिटेड तरीका, एक लिमिटेड प्रोविजन एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन, बट फॉर इलेक्शन। तो वो फर्स्ट चीज यहाँ पे आई थी 1892 में। डायरेक्टली इलेक्शन कहीं पे टर्म यूज नहीं हुआ था, नॉमिनेशन था, लेकिन स्टिल इट वाज अ काइंड ऑफ इलेक्शन इनडायरेक्टली। तो ये चीज आपको दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए whenever you think about Indian Councils Act of 1892। other which important things were brought was that non-official members were increased। so see what happened is कि जितने टाइम आप देखोगे कैसे धीरे धीरे पावर्स को बढ़ाया गया है। पहले नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को मतलब लाया गया, जिसमें इंडियंस
को घुसाया गया, ठीक है। अभी क्योंकि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आ चुके हैं तो अब क्या होगा, बढ़ाया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा, उसके लिए डिमांड्स हो रहे होंगे। तो 1892 में क्या हुआ, तो आपको ये एकदम सिंपल, आप अपना एक वो टाइमलाइन बनाओ कि 1861 पहला इंडियन काउंसिल्स एक्ट था, तो वहां पे बिगिनिंग था, तो ऑब्वियसली नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में इंडियंस को लाया गया। 1892 सेकंड है, तो वहां पे क्या हुआ होगा, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्रीज किया गया होगा। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट विच यू शुड रिमेंबर इज non-official members were increased in central and provincial legislative councils, but the official majority was maintained। ठीक है, ये भी चला जाएगा नेक्स्ट में आप देखोगे, ठीक है, नॉट कंप्लीटली बट टू अ लिमिट। तो दिस इज हाउ थिंग्स प्रोग्रेस। ओके, तो ऑफिशियल मेजोरिटी को मेंटेन किया गया था, लेकिन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ाया गया। And a very important provision that now budget was allowed to be discussed, not voted, only discussed। ठीक है, वोट नहीं कर सकते आप, but you can discuss budget and you can address questions to the executive। now यहाँ पे भी एक कैच है कि आप supplementary questions नहीं पूछ सकते, आप 6 दिन का नोटिस पे एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, मतलब एक क्वेश्चन नहीं, आप 6 days नोटिस दोगे प्रायर एंड देन यू कैन क्वेश्चन द एग्जीक्यूटिव। ओके, सो सी ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप चीजें हो रही थी, एक बारी में सब कुछ नहीं हो रहा था। सो नाउ फर्स्ट बजट डिस्कस करने नहीं देते थे, तो अभी डिस्कस करने दिया। पहले क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे आप एग्जीक्यूटिव को, तब आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, लेकिन आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस मतलब जैसे मैंने आपसे कुछ पूछा, आपने कुछ आंसर किया, और उसके बाद भी मुझे आपसे कुछ पूछना है उस आंसर के बाद कि ठीक है, आई फील दैट दिस इज वट एवर यूर डूइंग इज इनसफिशिएंट, तो आप नहीं पूछ सकते वो। यू हैव ओनली वन शॉट। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया, आपने दे दिया, बस खेल खत्म, वो लोग आंसर कर देंगे, हो गया। यू कैन नॉट लाइक आस्क सप्लीमेंट्री, एडिशनल क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। ठीक है, और जिसमें लिमिटेड इलेक्शन की बात जो कर रही हूँ, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये जो बजट की हमने बात की, ये इंट्रोड्यूस हुई थी ब्रिटिश इंडिया में इन 1860। ओके, सो रिमेंबर दैट। Okay, and ये जो limited and indirect provision for election, which I said is very important part of Indian 1892 Act, is that ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की नॉमिनेशन हुई थी, इसी को हम लोग लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर इलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो दिस नॉमिनेशन वाज गोइंग टू हैपन इन बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेशन किसके बारे, मतलब किसके द्वारा होगा, by Viceroy on the recommendation of provincial legislative councils and Bengal Chamber of Commerce। So Bengal Chamber of Commerce obviously important है क्योंकि बंगाल की है। ठीक है, so बंगाल का पावर था सुप्रीम तभी भी। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेशन होगा ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बाय वाइसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में कौन करेगा रिकमेंड, ऑब्वियसली अगर सेंट्रल में वाइसरॉय कर रहे हैं तो प्रोविंशियल में गवर्नर्स करेंगे। ठीक है, here the recommendation will be provided by district boards, then municipalities, universities, trade associations, जमींदार chambers, जो भी है सारे लोग recommend करेंगे, उसके basis पे गवर्नर nominate करेंगे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को। ठीक है, so this was brought by 1892 act। Next, very important act is Indian Councils Act of 1909, which is also known as Morley Minto reforms, जहाँ पे Morley was Secretary of State and Minto was the Viceroy of India at that point of time। So John Morley की फोटो मैंने डाल दिया है, और मिंटो की फोटो डालने की जगह नहीं थी ब्रो, मैं डाल सकती थी लेकिन मैंने छोड़ दिया, कहीं और डाल देंगे। ठीक है, सो जॉन मोरले द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1905 टू 1910, और ये थे लिबरल, क्योंकि 1906 में लिबरल पार्टी वापस आई थी ब्रिटिश में, और उन्होंने इलेक्शन जीता था, तो ये जो मोरले थे ये लिबरल थे। ठीक है, तो अभी इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट ऑफ 1909 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये हम देखते हैं। ठीक है, पहला चीज जो किया गया वो ये कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साइज को बढ़ाया गया। ओके, तो पहले छोटे छोटे काउंसिल्स होते थे तो उसको बढ़ाया गया। इन द सेंट्रल प्रोविंशियल काउंसिल में सीट्स को बढ़ाया गया 16 से 60, वेरी इजी टू रिमेंबर, इट वाज 16 टू 60। ठीक है, एंड प्रोविंशियल में ऑब्वियसली हर का अलग अलग था, सो इट वाज नॉट यूनिफॉर्म। Also, official majority in Central Legislative Council was kept, but non-official majority in Provincial Legislative Councils was allowed। यही चीज मैं आपको बोल रही थी कि अभी देखना, अभी पिछले में क्या हुआ कि आपका ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्रीज किया गया लेकिन मेजोरिटी नहीं दी गई। अभी इस 1909 में क्या हुआ कि ऑफिशियल मेजोरिटी को होता है ना सेंट्रल में रखा गया, लेकिन प्रोविंशियल में उन्होंने नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को अलाउ कर दिया। तो ये चीजें
आप देख रहे हो कैसे स्टेप बाय स्टेप चीजें आगे बढ़ रही हैं। ओके। और जो डेलिबरेटिव फंक्शंस थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, जो हम डिस्कस कर रहे थे पिछले एक्ट में, दैट की होता है ना, आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, बजट को कोट नहीं कर सकते, वो सारी चीजें यहाँ पे लाई गई बोथ लेवल्स पे, लाइक सेंट्रल प्रोविंशियल दोनों जगह पे आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते थे। अब बजट पे रेजोल्यूशंस मूव कर सकते थे। सो these were, the deliberative functions were enlarged. Also, इंडियंस को पहली बार एसोसिएट किया गया विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ वाइसरॉयज एंड गवर्नर्स। अभी तक लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साथ ही एसोसिएशन हो रहा था, बट नाउ विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स जो एक्चुअली प्रॉपर डायरेक्ट एक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सो दैट एसोसिएशन वाज ब्रॉट इन Indian Councils Act of 1909 for the first time, and first Indian to join Viceroy's Executive Council was Satyendra Prasad Sinha, and he was a law member in the council. Okay, so this is very very important fact. You should know this. Lovely fact actually, I must say. ओके तो आपको ये याद रखना है कि 1909 इतनी इंपॉर्टेंट इसीलिए हुई क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को, मतलब एक होता है ना, अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स को लाया गया जिसका बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था। नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी लाई गई प्रोविंशियल में, सेंट्रल में नहीं बट फिर भी प्रोविंशियल में लाई गई, अच्छी चीज़ है। फिर आपका साइज बढ़ाया गया था काउंसिल्स के, इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ एसोसिएट किया गया, फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, रेजोल्यूशंस ऑन बजट, ये सारी चीज़ें आई। सो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो अच्छा एक्ट था ये। और जो एक बुरी चीज आई थी इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 की, जिसके लिए एक्चुअली बहुत ज्यादा याद रखा जाता है, इज कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट टाइम जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो इंट्रोड्यूस हुआ था इन दिस एक्ट, एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड इन दिस। ठीक है, तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑब्वियसली शुरू हुई इसीलिए लॉर्ड मिंटो को, जो वाइसरॉय थे उस पॉइंट ऑफ टाइम, ही वाज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ओके, सो एक्चुअली लॉर्ड मॉर्ले वाज नॉट इन दैट मच ऑफ सपोर्ट, लेकिन फिर भी उनको दबाकर इन लोगों ने, होता है ना वो, ले लिया अप्रूवल किसी तरीके से, और सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया फॉर मुस्लिम्स। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड ऑल्सो नो इज 1906 में आई थी मुस्लिम लीग। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक्ट 1909 में आई थी, तो ऑब्वियसली उन्होंने परसुएट किया था कि हमें मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा एंड एवरीथिंग, एंड इसीलिए फाइनली 1909 में एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये भी चाल थी कि हम इनको थोड़ा पटा कर रखते हैं, इनको थोड़ा ल्यूर करके रखते हैं मुस्लिम्स को, दे विल हेल्प अस, जो भी होता है ना, रिवॉल्यूशंस बाकी होंगे, आगे एजिटेशंस होंगे, तो कहीं से तो सपोर्ट चाहिए ना, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी थी इनकी। तो वो सपोर्ट रखने के लिए इन्होंने मुस्लिम्स को खुश करने के लिए ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन शुरू किया था फॉर मुस्लिम्स। और सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यही है कि जो मुस्लिम्स कैंडिडेट हैं उनके लिए सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट करेंगे। ओके, सो दिस वाज सेपरेट इलेक्टोरेट। ओके, एंड the last point is that separate representation of presidency corporations, chambers of commerce, universities and jamindars was also brought in Indian Councils Act of 1909। तो इनकी भी representation लाई गई थी councils में। So this was also a very important fact. Okay, so let's proceed to another act now. So next we are going to talk about Government of India Act of 1919. So before we start this act, we need to understand the factors when this act was actually brought up. So first thing first is that First World War occurred between 1914 to 1918 and British wanted the support of Indians in that. Basically उनकी participation उनको चाहिए थी उस World War में. तो उसके लिए they obviously had to convince Indians that we will provide you your demands, in return you give your support to us in the World War. So this was the background of all these reforms which were brought. Okay, so what happened after that is, like, Lord Edwin Montagu, he became the Secretary of State, and after that he gave a proposal like for the self government, introduction of self government in India. But in that he had proposed free institutions. He did not propose, like, gradual realization of responsible government. He had proposed free institutions with, like, ultimately self government to Indians. But Lord Curzon, he felt that नहीं, इतना भी देना जरूरी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग वो सेल्फ गवर्नमेंट देंगे इंडियंस को। तो ये जो मोंटेगो डिक्लेरेशन आया था, ऑगस्ट डिक्लेरेशन, एक्चुअली ये ऑगस्ट डिक्लेरेशन इसलिए बोला भी जाता है बिकॉज दिस वाज दिस डिक्लेरेशन वाज मेड ऑन ऑगस्ट 20 1917। तो उसमें जो ये स्टेटमेंट है ये एक्चुअली कर्जन के अमेंडमेंट के साथ ही है।
तो कर्जन ने जो कहा था वही चीज को यहाँ पर रखा गया। मोंटेगो की जो ओरिजिनल स्टेटमेंट थी, जो ओरिजिनल प्रपोजल था, वो नहीं रखा गया। फ्री इंस्टीट्यूशंस नहीं रखे गए। क्या रखा गया? विल रीड दिस। सो विल रीड दिस होल स्टेटमेंट एंड विल, मतलब बीच में हम बातें कर लेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। Okay, so I need my blue pen. Yeah. So the policy of His Majesty's government is that of the increasing association of Indians in every branch of the administration. So this was very important कि now they are going to increase the association of Indians. तो number of Indians को बढ़ाएंगे in every branch of the administration, हर branch में. Okay, and the gradual development of self-government institutions. So this was the main part, the main demand which was being made and the main demand which was heard, that now gradually we are going to develop self government institutions, which means that Indians are going to rule themselves. ठीक है, ब्रिटिश रूल नहीं करेंगे, इंडियंस खुद को खुद रूल करेंगे, सेल्फ गवर्नमेंट होगा, with a view to the progressive realization of responsible government in India, ठीक है, as an integral part of the ब्रिटिश अम्पायर. सो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि एक इंसान का से होता है ना, वो ऑटोक्रेसी नहीं चलेगी. देयर हैज टू बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड टू आंसर फॉर योर एक्शंस. सो दैट इज व्हाट दे मीन बाय रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. व्हेन जब आपको लेजिस्लेचर में बताना पड़ता है कि आप क्यों एक एक्शन ले रहे हैं, आप जो एक्ट ला रहे हैं वो कैसे जस्टिफाइड है, यू कैन बी आस्क्ड क्वेश्चंस. सो दैट इज व्हाट दे मीन बाय रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. सो द होल डिक्लेरेशन basically stated कि now we are going to increase the association of Indians in every branch of administration, and we are trying to build gradually self-government institutions with a view to the progressive realization of responsible government. But it was also said that all this will be done as an integral part of the British Empire. So they were not really willing to give the complete freedom. It was like everything will be given but as an integral part of the British Empire. आप part रहोगे British Empire के ही. Okay, so after this declaration was made, the whole point of reforms were brought on 8th July 1918, and this is known as Montagu Chelmsford report. Okay, and on this report only these reforms were actually brought. The whatever the reforms are stated in this report, these are only known as Montagu Chelmsford reforms. And based on this, actually, Government of India Act of 1919 was brought. ज़्यादा कंफ्यूज आप हो रहे हैं तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये डिक्लेरेशन होने के बाद ये मोंटेगो चेम्सफोर्ड दोनों मिलके इन्होंने पूरा डिसाइड किया कि रिफॉर्म्स होने क्या वाले हैं अल्टीमेटली. ठीक है, ये तो हमने बोल दिया कि चलो सेल्फ गवर्नमेंट होगा, इंक्रीज करेंगे एसोसिएशन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, लेकिन कैसे? तो वो जो रिफॉर्म्स है उस चीज़ को उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई. ऑब्वियसली हर चीज़ की एक रिपोर्ट ही बनती है, तो रिपोर्ट बनाई, उसमें उन्होंने स्टेट किया कि ये सारी चीजें होंगी रिफॉर्म्स में, और ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ 8 जुलाई 1918 को. ओके, और यही जो रिपोर्ट थी जिसमें ये रिफॉर्म्स को स्टेट किया गया, जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया, उन्हीं के बेसिस पे ये एक्ट लाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919. ठीक है, so now we will see what were the reforms brought in this act. Okay, so first thing first was, what the main things were done was that central control over the provinces was relaxed. Kaise? Like, how was the central control relaxed? Central and provincial subjects were demarcated. जो आज के टाइम में भी हमारे में है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, तो ये चीज वहां पे पहले लाएगी. पहले क्या होता था कि सेंट्रल का ही सारा प्रेशर, मतलब जो सेंट्रल बोलेगा वही प्रोविंसेस को करना है, बट दिस control was relaxed in this act of 1919. okay, कैसे? उनको सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे सेंटर एक्ट करेगी और ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे प्रोविंसेस के राइट्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट दे डिड वाज, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वे डिवाइडेड इनटू ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स. ये बहुत जो सबसे पॉपुलर एक्चुअली पॉइंट है इस एक्ट का इज डायरकी, विच इज एक्चुअली नोन, मतलब मीन्स डबल रूल. ठीक है, वो डबल रूल आता ही कैसे है कि इन प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स ऑल्सो दे मेड टू टाइप्स ऑफ रूल. वहां पे उन्होंने क्या किया कि उस सब्जेक्ट्स में भी दो तरीके के रूल को बना दिया. कैसे? कि उन्होंने ट्रांसफर सब्जेक्ट्स बनाए, रिजर्व सब्जेक्ट्स बनाए. ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में क्या करना है कि एक्ट गवर्नर करेंगे विथ एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. मतलब इनको जवाबदेही होगी, लेजिस्लेचर में दे हैव टू आंसर. ठीक है, दैट the ministers will be responsible to the legislative council. So with help of those ministers, governor will make the decision on these subjects. ठीक है, but on reserve subjects, जब reserve subjects की बात हो रही थी,
तब गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज गोइंग टू एक्ट विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. इनका जो डिसीजन होगा ये गवर्नर और एग्जीक्यूटिव मिलके ही लेंगे. दे आर नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. मतलब ये रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स हैं, इन पे वो लोग डिस्कस नहीं करेंगे लेजिस्लेचर में. इनमें उनका ही डिस्कस जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा. ठीक है. सो दिस इज हाउ दे ब्रॉट डबल रूल विच इज नोन एज डायरकी. ओके. So yes, you should know this concept very well. This was asked in UPSC previous year question, I think, recently, 2018 में शायद. ठीक है. So yeah, let's see. 2017 या 18 में this was asked कि डायरकी का एक्चुअली में मतलब क्या था, क्यों बोलते हैं हम डायरकी, किस चीज को एक्चुअली बोलते हैं डायरकी. ठीक है. तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सब्जेक्ट्स, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को जो इन्होंने डिवाइड किया था दो सब्जेक्ट्स में, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, रिजर्व सब्जेक्ट्स, वो एक्चुअल डायरकी का मतलब है. ठीक है. Next, they actually introduced bicameralism and direct elections in this act also. So this is also very important. Bicameralism मतलब दो houses बने. ठीक है. जैसा अभी है लोकसभा राज्यसभा, तो वही तभी भी बनाया गया. ठीक है. तो जो लोअर हाउस थी वो लेजिस्लेटिव असेंबली थी और अपर हाउस आपका काउंसिल ऑफ स्टेट. मतलब यही काउंसिल ऑफ स्टेट बाद में जाके राज्यसभा बनती है और लेजिस्लेटिव असेंबली बाद में जाके लोकसभा बनती है. ठीक है. और मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स जो थे आप लेजिस्लेचर में वो डायरेक्ट इलेक्शन से आ रहे थे. तो ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मतलब यहाँ पे इलेक्शन लाना ही बहुत बड़ी बात थी तभी. तो अब डायरेक्ट इलेक्शन से मेजोरिटी ऑफ द लोग इलेक्ट होंगे. सो दैट वाज अ बिग डील. नेक्स्ट विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट वॉज डन दैट जो वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जो एक्चुअली बहुत पावरफुल होता था डिसीजन मेकिंग में, उसमें भी 3 out of 6 मेंबर्स विल बी इंडियन. ओके. एंड अदर देन कमांडर इन चीफ. ऑब्वियसली कमांडर इन चीफ को इन्होंने नहीं रखा था उसमें. कमांडर इन चीफ एक्चुअली मिलिट्री एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, मिलिट्री डिसीजंस के लिए. तो उनको छोड़कर बाकी जो 6 मेंबर्स में जो 3 मेंबर्स हैं वो इंडियन होंगे. ठीक है. And separate electorates was brought for Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans. तो पहले तो इन्होंने मुस्लिम्स के लिए ले ही आया था, तो इस वाले में इन्होंने एक्सटेंड किया फॉर सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस. और इन्होंने फ्रेंचाइजी को भी एक्सटेंड किया था ऑन बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन. ठीक है. मतलब ऐसा तो नहीं कि सबको नहीं मिला फ्रेंचाइजी, मतलब वोटिंग राइट्स. ठीक है. कि अब कितने लोग वोट करेंगे, तो वो भी तभी हमारे जैसे देश में अभी है ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब सारे लोग जो 18+ हैं वो वोट कर सकते हैं. बट तभी वैसा नहीं था, वहाँ पे लिमिटेड फ्रेंचाइज थी, कुछ ही लोग पर्टिकुलर एक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे वो वोट कर सकते हैं. तो वो फ्रेंचाइज भी उसको एक्सटेंड किया गया था इस एक्ट में ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन. मतलब कुछ क्वालिफिकेशन बनाया गया कि आपकी इतनी प्रॉपर्टी, आप इतना टैक्स देते हो या फिर आप इतने पढ़े लिखे हो तो आप वोट कर सकते हो. सो दिस वॉज डन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919. Also, a new office of High Commissioner for India in London was made, and some functions of Secretary of State for India was transferred to this office. Okay, so this also you should know. Okay, and a very important part is that Public Service Commission establishment was recommended in this act, and based on this, actually, this was recommended by the committee of like Lee Commission on Superior Civil Services in India. You can see it here, which was constituted in 1933-24, and this recommended the establishment of Central Public Service Commission, and it was finally set up in 1926. Okay, so you should remember कि ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन आई थी कौन से कमिटी के रिकमेंडेशन पे आई थी. सो दिस वाज ली कमीशन ऑन सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया. ओके. ऑल्सो क्योंकि यहाँ पे अब ज्यादा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और सेल्फ गवर्नमेंट की बात हो रही थी, फ्रीडम दिया जा रहा था प्रोविंसेस को भी. सो प्रोविंशियल बजट्स वेर ऑल्सो सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल बजट. ओके. तो दे वेर ऑल्सो अलाउड टू लाइक इनैक्ट देयर बजट्स. ठीक है. पहले सेंट्रल ही प्रोविंसेस के भी बजट्स को इनैक्ट करती थी, लेकिन अभी अलग कर दिया गया कि अपना अपना बजट होगा. जैसे अभी होता है, नॉर्मली होता है ना कि स्टेट के अपने बजट्स होते हैं, सेंट्रल का अपना बजट होता है. तो वो उस समय पे लाया गया और इनैक्ट करने की भी अथॉरिटी दी गई प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को. एंड इट वॉज सेड, which was very important, that a statutory commission will be appointed after 10 years to look into that the reforms which have been suggested in this act, how are they working and what improvement can be brought up, या फिर क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ. तो इस चीज के लिए एक कमीशन बैठानी है आफ्टर 10 years टू लुक इनटू कि कैसा ये एक्ट गया. ठीक है. ये जो रिफॉर्म्स हैं ये एक्चुअली में फायदेमंद हुए या नहीं हुए. ओके. एंड बेस्ड, और यही जो कमीशन अपॉइंट हुई थी ये थी साइमन कमीशन. ठीक है. वी विल स्टडी दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड.
so we have come to the end of this video, and next video is going to start with Simon Commission, जो in 1919 के बाद रिकमेंड हुई थी कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन आएगी, तो उसी से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट 3। और ये प्लान में तो नहीं था, पार्ट 2 तक ही था प्लान, लेकिन बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा था, तो मुझे लगा कि फिर आप देखोगे ही नहीं, डिमोटिवेट होगे, तो मैंने उसको फिर से थर्ड पार्ट में कर दिया है, एंड ताकि आपको आराम हो और आप देखो, वो मोटिवेशन रहनी चाहिए। सो इसीलिए जाइए और आप एक नैप ले लीजिए, क्योंकि वो वीडियो भी तैयार है, तो जितना टाइम लगेगा पब्लिश होने में, क्योंकि वो पब्लिशिंग भी एक बड़ी डील है ना, अभी नेट उतनी फास्ट नहीं है यहाँ पे, तो जितने देर लगेगा बस पब्लिश होने में, उतना ही टाइम गैप है आपके पास। सो गो टेक अ नैप, कम बैक फ्रेशर, स्ट्रॉन्गर, एंड yeah, so thank you so much for watching the video, and I'll see you in the next video. Bye bye.